warriors. Welcome to Super Kalam, and I am your teacher Arpita Sharma. Today, as I promised, Sunday ko we are going to summarize the weekly news analysis. We are going to summarize the entire week's The Hindu newspaper from the perspective of prelims, from the perspective of mains. क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी इनिशियली हैंड इन हैंड जाती है, एंड बिकॉज करंट अफेयर्स ने इतना मेजर रोल प्ले किया है प्रीलिम्स 2024 के एग्जामिनेशन में, एंड द डेली न्यूज एनालिसिस क्लासेस आल्सो प्लेड सच अ ह्यूज रोल. ऑलमोस्ट 30 प्लस क्वेश्चंस कुड हैव बीन सॉल्व्ड अगर आप डेली न्यूज एनालिसिस की क्लासेस में रेगुलर थे पिछले एक साल से. So now we have started this. I don't want to spoon feed any one of you. मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर ना खुद से वो कैपेबिलिटी डेवलप हो कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस जीएस पेपर्स परस्पेक्टिव पे है. क्योंकि मेरा और सुपर कलाम का इंटेंशन एक ही है, आप लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना. एंड दैट इज वाई ऑन सुपर कलाम डेली यू गेट द डेली न्यूज एनालिसिस and DPQs, daily prelims questions. If you haven't checked it out, the description box में the link is given. Okay, तो शुरू करते हैं आज की क्लास. There would be important articles. I'll show you how we are going to move ahead. तो articles होंगे and I have made mind maps around the articles so that we can extract the important information फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, और मैं साइमल्टेनियसली आपको समझाती भी जाऊंगी. ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पूरा आज का सेशन का एक ब्रीफिंग. एंड शुरू करते हैं क्लास. ऑल द बेस्ट एवरीवन. मेक श्योर यू हैव मेंटेन्ड अ सेपरेट रजिस्टर, और व्हाट यू कैन डू इज, if we are delving with polity related current affair, then you have to make a note of it in polity register. If we are making a note of, let's say, African swine fever के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो GS पेपर 3 के रजिस्टर में आप उसका नोट बना सकते हो. So this is how we will proceed. Let's start everyone. You'll see on your computer screen would be about the new criminal laws in force, CRPC IPC, applicable only for old cases. If you remember, we have launched the mains answer writing initiative wherein students are writing answers, and it's a free initiative on our Telegram channel. The link is also given in the description box of our Telegram channel. You can join it there. तो वहां पर ना डेली फ्रॉम द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वी आर गिविंग वन डेली मेंस क्वेश्चन विच इज नोन एज DMQ टू द स्टूडेंट्स टू राइट, एंड देन दे गेट इट इवेल्युएटेड. टॉप जो 20-30 क्वेश्चंस होते आंसर्स होते हैं वो तो मैं ही इवेल्युएट करती हूँ पर्सनली. अगर आप टाइम लिमिट से पहले उसको सबमिट कर दो ask@kalam.in पर, दिस इज द मेल ID. बट रेस्ट ऑल दी क्वेश्चंस आप सुपर कलाम से इंस्टेंटली इवेल्युएट करवा सकते हो. तो आई गिव अ क्वेश्चन ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज ऑल्सो. Now let us understand what are these new criminal laws. Why it is in news? It has been in news since last year, but right now it was in news. Why? Because they have been revised. इसको criminal law bills को revise किया गया, and now they are in force. Because last year we saw that they were, they are being talked about. Then we saw that they were implemented also. But कोई भी criminal law, whichever criminal law it is, ठीक है, if it is implemented, it will take time to train the police forces, है ना. If the criminal law should be understood by the police forces very clearly, because they are the one who have to execute it on ground. If you do not have the hold on the provisions of the criminal laws, how you can make arrest, how you can make a better judgment about the person who has committed the crime, है ना. So that is why the police personnel were being trained. Secondly, the states were saying ki, we will have our own provisions according to our situations and circumstances. So now finally, states are free to bring their own amendments to some provisions of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which has replaced the Code of Criminal Procedure CRPC. Then we have Bharatiya Nyay Sanhita, which has replaced the IPC, है ना. And then we have the Bharatiya Sakshya Bill, which has replaced the Indian Evidence Act. Evidence का मतलब होता है साक्षी, ठीक है, साक्ष्य, जब आप प्रूफ देते हो, और साक्षी होता है विटनेस. यू हैव टू रिमेंबर दैट. Now there are some changes which have been made to these bills. For example, IPC को जिसने replace किया है भारतीय न्याय संहिता, it may also be amended now soon. See, people were saying कि if there are sexual crimes against men or transgender people, then there are no provisions, so this is unfair. So now the Bharatiya Nyay Sanhita will be amended. The sexual crimes against men and transgender would be added to it, so that there is a fair deal of justice which is given in the society. And then when we talk about Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which is also known as BNSS, so here also you will see that it prescribes the procedure and condition for three things: arrest,
bail and custody. Now these are the three terms for prelims that you should ask. मतलब be curious, do not cram anything. अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ उसे रटना नहीं है. Ask what is the meaning of arrest, ask what is the meaning of bail, कस्टडी का मतलब क्या होता है. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट. तो ऐसा करते हैं, आई गिव यू वन होमवर्क, दिस इज होमवर्क वन ऑफ द डे. You have to tell me the meaning of or the difference between arrest, bail and custody in the comment section, and I promise you that I will personally reply to each one of your comments. Okay, so now they will be applicable, these new criminal laws. That is why it is in news कि अब ये 3 से 4 साल लगेंगे fully implement करने में, but applicable हैं, अब ये in force हैं. बट सीआरपीसी एंड आईपीसी सिर्फ पुराने केसेस के लिए, ओल्ड केसेस जो अभी चले आ रहे हैं उनमें एप्लीकेबल रहेंगे. नाउ देयर इज अ प्रोविजन फॉर जीरो एफआईआर आल्सो. दिस इज अनदर टर्म फॉर प्रीलिम्स दैट यू शुड रिमेंबर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एफआईआर, ये आपको समझना जरूरी है. एफआईआर तो पता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है. जीरो एफआईआर क्या होती है? जीरो एफआईआर बेसिकली रेफर्स टू द एफआईआर दैट इज रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया. निर्भया केस के बाद ये न्यूज में काफी आया था, है ना. इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया. सो इफ अ क्राइम हैज अकर्ड इन लेट्स से एरिया ए एंड नियर बाय पुलिस स्टेशन वो एरिया बी का पड़ रहा है, तो आप एरिया बी के पुलिस स्टेशन में जाके भी एफआईआर दर्ज करा सकते हो. इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, एफआईआर कैन बी फाइल्ड इन सच केसेस. बाद में उसको एरिया ए में आप ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है. पुलिस इन सच अ केस कैन नो लॉन्गर क्लेम दैट वी हैव नो जुरिस्डिक्शन. निर्भया के केस में ये हुआ था, पुलिस वाज सेइंग कि वी हैव नो जुरिस्डिक्शन. ये गलत था. ठीक है. तो दैट इज व्हाई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ एंड टू कंप्लीटली रिमूव दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस और सर्कमस्टांस, जीरो एफआईआर लेकर आया गया. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी आ जाती है विच इज नोन एज जस्टिस वर्मा. जस्टिस वर्मा कमिटी, प्लीज राइट इट डाउन. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्डर फॉर मेंस. सो जस्टिस वर्मा कमिटी के रिकमेंडेशन पे जीरो एफआईआर को लेकर आया गया. Now, this Justice Verma committee was formed at the backdrop of the Nirbhaya gang rape, which happened in 2012. Okay, so basically, it will make sure that victim does not have to run from pillar to pillar to get justice or to get the complaint registered. स्पीडी रिड्रेसल हो जाएगा, स्पीडी वे में हेल्प पहुंच जाएगी विक्टिम के पास तक. तो जीरो एफआईआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस हैज टू कम विद इन 45 days. दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी वेलकमिंग एंड गुड स्टेप. दीज आर दी अमेंडमेंट्स. ठीक है, इन दीज क्रिमिनल लॉज. तो ये बॉक्स पढ़ना बहुत जरूरी है. ये आपको मेंस में आंसर लिखने के मटेरियल को प्रोवाइड करेगा. यू डोंट हैव टू रन हियर एंड देयर फॉर मटेरियल इन मेंस. एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द न्यूज़पेपर इटसेल्फ. नाउ when we move ahead, the next very important article that you see in the newspaper is this one. अब ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, तो इसको ध्यान से पढ़ना है. ठीक है. when we talk about this article talks about that we have maintained our own fauna and flora list. टैक्सा ऑफ प्लांट्स हमने मेंटेन किया है. टैक्सा का मतलब क्या होता है? सब स्पीशीज ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज. हमारे पास इंडिया में जितनी भी प्लांट स्पीशीज हैं उसकी जितनी भी वेराइटीज हैं, सब स्पीशीज हैं, उसकी पूरी लिस्ट जो होती है वो टैक्सा होती है. टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ दिस. ओके. तो इंडिया ने अपना खुद का लिस्ट तैयार किया है. दैट इज अ वेरी अगेन वेरी प्राउड थिंग कि हमारे पास अपनी खुद की स्पीशीज की न्यूली डिस्कवर्ड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, न्यूली रिकॉर्डेड स्पीशीज की लिस्ट है. एंड इन दिस अ न्यू स्पीशीज ऑफ टर्मरिक हैज बीन एडेड इन फ्रॉम मणिपुर. तो यहाँ पर अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ये पूरा आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंटायरली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. So this basically India has added 641 new species to the fauna database, जिसमें 442 तो नई स्पीशीज है, बिल्कुल नई तरीके से डिस्कवर की गई हैं. बट 199 वर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. हमने न्यू तरीके से रिकॉर्ड किया है उसको, हमारे रिकॉर्ड में नहीं था. इट वाज नॉट इन आवर रिकॉर्ड, वी हैव रिकॉर्डेड इट नाउ. Then another important species, Capra himalayensis. So this is also a form of Himalayan ibex. तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्पीशीज. साइबेरियन आइबेक्स से बिल्कुल डिफरेंट है. अब देखो, आई रिमेंबर इन द लास्ट डीएनए क्लासेस आई हैड टॉट अबाउट द फ्लाइंग फॉक्सेस एंड प्रीलिम्स में इस बार क्वेश्चन भी आ गया था. तो इस बार आई एम गोइंग टू अंडरलाइन, हाईलाइट हिमालयन आइबेक्स एंड साइबेरियन आइबेक्स. प्लीज इसको पढ़ना है. ठीक है. देयर IUCN स्टेटस, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Now in this particular species maintenance, now there are two organizations which are, or two bodies which are involved. So we have Animal Discoveries 2023 ka report, which has been published by Zoological Survey of India. This is important. Then what do we have? We have the Plant Discoveries 2023 report, which has been published by Botanical Survey of India. तो ये Zoological Survey of India and Botanical Survey of India पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. Now here you will find that another species has been found, and it is India's fifth bent winged species. So this is again important for prelims. Please इसको ignore मत करना, ये काफ़ी important चीज़ें हैं. ठीक है, ध्यान में लेने वाली चीज़ें आई है आपके सामने. तो यहाँ पर यू विल सी दैट दीज बेंट विंग्ड बैट स्पीशीज ये कर्नाटका में पाई गई है इन द कोडागू डिस्ट्रिक्ट. ओके, एंड इट इज नोन एज मिनियोप्टेरस श्रीनी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको लिख लीजिए. व्हाट आई वुड रिकमेंड इज इस पूरे साल ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करना जिसमें सारी स्पीशीज और उनकी इंफॉर्मेशन लिखते जाना. आपको लास्ट में बहुत हेल्प करेगी वो छोटी सी डायरी. ठीक है. Now, when we talk about this particular article, the new turmeric species from Manipur in the Kakching district, which has been identified, is known as Curcuma kangchingse. Turmeric to वैसे भी it is highly beneficial for enhancing the immunity in your body. Now, this particular Curcuma kangchingse, basically it's a flowering plant species. तो 8 फीट का लंबा सा प्लांट होता है, ये टर्मरिक प्लांट है, एंड इट इज अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ टर्मरिक प्लांट. यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि similarly in this list there is another flowering plant which has been identified. What is it? It is the Astacia vinui. यहाँ पर मैंने नोट भी बनाया. I'll be sharing the notes also with you by the way. तो आप घबराना मत, टेलीग्राम पे नोट्स भी आपके साथ शेयर होंगे. Now it has been discovered in आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिक गार्डन. कहाँ पर है ये गार्डन? ये इंपॉर्टेंट है. इट इज इन वेस्ट बंगाल. Okay, and another important announcement in this list is that there are 3 states which have been basically accorded the rank 1, 2 and 3 in terms of new species which have been discovered. For example, Kerala is the topmost state जहाँ पर सबसे ज़्यादा animal discoveries हुई हैं. West Bengal में 72 new species have been discovered, second rank है. Third rank पर तमिलनाडु आ जाता है, 64 new species have been discovered there. तो and out of all these species ना 564 are invertebrates, 77 आर वर्टिब्रेट्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है. इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट स्पीशीज के कुछ एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अलग से. दिस इज योर होमवर्क नंबर 2. तो आई एम ट्राइंग टू जस्ट स्टिमुलेट योर ब्रेन ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस तरीके से ब्रेन स्टॉर्म करना होता है ना. चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. अब देखो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. अगेन प्रॉपर पूरा आर्टिकल प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. एंड फ्रॉम मेंस परस्पेक्टिव ऑल्सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक कैसे आप इस आर्टिकल को क्या करोगे, मतलब इस तरीके की डिजीज को, how you are going to cater to this disease if you are a bureaucrat, how you are going to control the spread of this disease. इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा सकते हैं. So here primary amoebic PAMs has been found. This kind of amoeba has been found. ये brain eating amoeba है. It also damages the brain and it impacts the cells or tissues around the brain. It's a very rare infection. ऐसा नहीं है कि बहुत common है, बहुत rare infection है. And also another important point is कि this particular kind of amoeba is a fatal infection. मतलब इसमें चांसेस बचने के बहुत कम होते हैं. Now when we talk about another important point in this particular topic, इसमें ना different types होते हैं. Even in this kind of amoeba there are 2 different categories which are found. So what are those 2 different categories? One is the primary amoebic meningoencephalitis. Second is known as GAE, which is granulomatous amoebic encephalitis. So basically इसको ना कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है. You can find it in dust, in soil. एंड जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं या लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये उनको प्राइमरीली इम्पैक्ट करता है. अगर मान लो आपने कंटैमिनेटेड डस्ट को इनहेल कर लिया, ठीक है, या सॉइल को इनहेल कर लिया, देन इट कैन गेट ट्रांसमिटेड. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कट्स या वूंड्स के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो जाता है. बेसिकली व्हाट इज द सिम्टम इसका सिमिलर होता है प्राइमरी अमेबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस जैसा, बट इन दिस केस ना व्हाट हैपेंस, इट टेक्स सेवरल वीक्स टू मंथ्स टू डेवलप एंड इट लीड्स टू डेथ. मेंटल स्टेटस आपका ऑल्टर हो जाएगा, या फीवर बढ़ने लगेगा, लो ग्रेड फीवर होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होने लगेंगे एक इंसान में. तो दीज आर द काइंड्स ऑफ सिम्टम्स ओवर हियर.
दिस इज वेरी वेरी फेटल। एंड इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? देखो, अगर हम पीएएम की बात करें तो इसमें तो इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू सपोर्ट का सपोर्ट लिया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द जीएई, द ग्रैन्युलोमेटस अमीबिक एंसेफेलाइटिस, तो यहाँ पर ना कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है कुछ कुछ दवाइयों की, जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फेडियाजिन, देन देयर इज पेंटामाइडाइन, दीज काइंड ऑफ मेडिसिन आर गिवन, और इसमें ना सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। सो दैट इज वन सच थिंग अबाउट द जीएई। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब इसमें कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो? आप वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज में स्विमिंग के लिए मत जाओ ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर पीरियड, या फिर अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो तो नोज क्लिप्स लेकर जाओ, ठीक है, ताकि आप इनहेल ना कर सको किसी भी तरीके के इस तरीके के अमीबा या बैक्टीरिया को, या अपने पानी से अपने सर को ऊपर ही रखो, ठीक है। मैं तो कहूंगी कि आप अगर आपके एरिया में स्विमिंग पूल्स है, आप स्विमिंग करने जाते हो तो उसको मेंटेन करो, उसकी हाइजीन को मेंटेन करो, ठीक है। देन प्रॉपर क्लोरिनेशन होना चाहिए स्विमिंग पूल्स का, बिकॉज अमीबा जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्वायरमेंट में फ्रेश सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। पैरासाइट्स के आप देखोगे दे आर लाइक पैरासाइट्स के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स आर हैपनिंग एंड दे आर इंक्रीजिंग। 2 लाइफ्स तो ऑलरेडी चली गई केरला में, तो दिस इज फेटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have next very important article, carbon derived from coconut husk can power supercapacitors, find researchers। अब यहाँ पर ना सबसे पहले समझना जरूरी है what exactly is a supercapacitor। कार्बन जो कि कोकोनट हस्क से डिराइव किया जाता है, ये सुपर कैपेसिटर को पावर कर सकता है, एनर्जी दे सकता है। रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया है, डिस्कवर किया है। तो बट व्हाट एग्जैक्टली सुपर कैपेसिटर? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड। तो जब हम सुपर कैपेसिटर की बात करते हैं ना, इट इज नोन एज अल्ट्रा कैपेसिटर। सो बेसिकली एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये, ठीक है। सुपर कैपेसिटर्स आर एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, ओके। एंड जितने भी कन्वेंशनल कैपेसिटर हैं या बैटरीज हैं, उनके बीच का मीडिएटर होता है सुपर कैपेसिटर। तो ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर करेगा। इट विल स्टोर एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन ऑफ चार्जेस। केमिकल रिएक्शन वगैरह जो बैटरीज में होता है ना, वो यूज नहीं होता सुपर कैपेसिटर में। ये क्या करेगा? थ्रू दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर, इट विल स्टोर एनर्जी एंड देन इट विल ट्रांसम्यूट एनर्जी। एक ब्रिज की तरह काम करेगा, ओके, ताकि बैटरीज और फास्ट काम कर सके और फास्ट चल सके। दैट इज द पर्पज ऑफ सुपर कैपेसिटर्स, कैपेसिटेट्स एनर्जी ट्रांसफर, ओके। एंड नाउ दे आर सेइंग दैट कोकोनट हस्क से, शेल से, जो कोकोनट के शेल के ऊपर जो हस्क होता है, कोकोनट के हस्क से जो कार्बन डिराइव किया जाता है, उससे, विच इज नोन एज एक्टिवेटेड कार्बन ऑल्सो, दैट विल हेल्प टू पावर द सुपर कैपेसिटर। तो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीका हो गया, ठीक है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज इन न्यूज। So here we need to understand what exactly is activated carbon। बहुत ही पोरस फॉर्म होता है ये कार्बन का, हाईली पोरस फॉर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड चारकोल। सो बेसिकली इट इज प्रोसेस्ड टू हैव वेरी स्मॉल पोर्स, सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसका, ताकि केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो इट हैज हाई सरफेस एरिया, HSA। बिकॉज इट इज पोरस, दैट इज वाई इट हैज हाई पोरोसिटी। प्लीज राइट इट डाउन। तो that allows it to absorb a variety of different molecules, okay। और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोकोनट शेल, पेट्रोलियम पिच, लिग्नाइट, कोल, कॉयर। एंड बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं इसके प्रोडक्शन में। एक होता है कार्बनाइजेशन। प्लीज राइट इट डाउन, देर आर 2 स्टेप्स इन इट्स प्रोडक्शन। कार्बनाइजेशन, तो इसमें हाई टेम्परेचर में रखा जाता है सो दैट वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट्स जो है इसके अंदर, उनको निकाल दिया जाए। एंड सेकेंड होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जो कार्बनाइज्ड मटेरियल होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट किया जाएगा हाई टेम्परेचर पे, ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पोरस बन सके, सो दैट इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी, ओके। सो दीज आर द 2 प्रोसेसेस, कार्बनाइजेशन एंड ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन से पोरस बनता है, कार्बनाइजेशन से क्या होगा? इसके अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। सो दैट इज द न्यूज ऑल अबाउट। नाउ वी हैव पॉलिटी रिलेटेड न्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपका। So they are talking about, should education be brought back to the state list? Now why it is in news? Education right now is in concurrent list, okay, that is why it was in news। सबसे पहले ये बताओ स्टेट लिस्ट क्या होता है? स्टेट लिस्ट बेसिकली वो सब्जेक्ट्स को कैरी करता है जिसके ऊपर लेजिस्लेशन स्टेट कर सके, दैट इज स्टेट लिस्ट। 7th शेड्यूल में आता है। 7th शेड्यूल के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बहुत आए हैं, है ना। देन स्टेट लिस्ट में
कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगा, पब्लिक आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ आ जाएगा, सॉरी, एग्रीकल्चर आ जाएगा, लोकल गवर्नेंस आ जाएगा, है ना। दीज सब्जेक्ट्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। देन यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, जो सेंटर के कंट्रोल में है, डिफेंस, देन फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, बैंकिंग, दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर यूनियन लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा, जो बीच में है, जिसके अंदर दोनों का ही कंट्रोल रहेगा, सेंटर एंड स्टेट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन जॉइंटली मेक लॉज। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वी हैव मैरिज, वी हैव एजुकेशन विच इज ऑल्सो इन दिस न्यूज, वी हैव अडॉप्शन, फिर हमारे पास फॉरेस्ट आ जाता है, फिर सक्सेशन आ जाता है। तो वो एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में पार्ट है। नाउ दे आर आस्किंग शुड एजुकेशन बी ब्रॉट बैक टू स्टेट लिस्ट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों डाला गया, एंड इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस ईयर प्रीलिम्स 2024 a question came, this is important। एम लक्ष्मीकांत बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी फर्स्ट चैप्टर हैज दिस पर्टिकुलर एक्ट, पढ़ना बहुत जरूरी है। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एजुकेशन को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में डाला गया था, पीएलएल में। देन इंडिपेंडेंस के बाद इसको स्टेट लिस्ट में डाला गया था। बट इन 1976 अ चेंज हैपेंड। व्हाट चेंज हैपेंड, यहाँ पर इस पैराग्राफ में उसके बारे में बात की गई है ओवर हियर। ठीक है, व्हाट इज द चेंज दैट हैपेंड, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन आया कि एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दो। कोई एक्सप्लिसिट रीजन नहीं दिया गया, नो डिटेल्ड रैशनल वाज प्रोवाइडेड फॉर दिस स्विच। ओके, बट इसको फुली, देन अगेन हमारे पास 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। उन्होंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, बट उसको फुली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ओके, तो देखो ओरिजिनली अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एजुकेशन जो था वो स्टेट का मैटर था, है ना। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने सिचुएशन के हिसाब से एजुकेशन को एड्रेस करती हैं, एजुकेशन को की तरफ देखती हैं। एंड इफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट व्हेन इट शिफ्टेड एजुकेशन टू कॉन्करेंट लिस्ट, तो इससे क्या हुआ, फेडरलिज्म पर इंपैक्ट आया। फेडरलिज्म क्या है, व्हेन स्टेट एंड यूनियन वर्क हैंड इन हैंड। अब फेडरलिज्म को इंपैक्ट कैसे करेगा, अगर आप कॉन्करेंट में डाल दोगे, सेंटर भी चेंज, जॉइंटली चेंज कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है, स्टेट स्पेसिफिक नहीं रहा। देन व्हाट अबाउट स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन एजुकेशन, सो दैट वाज अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म। तो अगर हम इसको स्टेट लिस्ट में डाल देते हैं तो इट विल रिस्टोर फेडरलिज्म का कंपोनेंट, है ना। फेडरलिज्म का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा इस केस में। प्लस स्टेट फंड जो है 85% जाता है एजुकेशन एक्सपेंसेस में, तो वो अपने फंडिंग को कंट्रोल कर सकेंगे अकॉर्डिंगली। देन अभी नीट का जो केस हुआ है ना, उसके बाद ही ये चीज आई है न्यूज में। ओके, सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है नीट, तो इससे क्या होता है, ये स्टूडेंट के पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं करता है प्रॉपरली। तो अगर आप स्टेट लिस्ट में एजुकेशन डाल देते हो तो स्टेट के स्टूडेंट्स के पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जा सकता है। बट राइट नाउ सेंटर एंड स्टेट बोथ आर क्लैशिंग ऑन दिस, दैट इज वाई दिस आर्टिकल केम कि क्या एजुकेशन को डाला जाए, बोथ द प्रोज एंड कॉन्स हैव बीन हाईलाइटेड। So this is how you need to look at a particular article when you are studying the current affairs. इस तरीके से देखना है। And the best part of the Hindu newspaper is यहाँ पर टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के पेज में जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसका एक समरी, उसका एक जिस्ट भी दिया जाता है, तो समझना ईजी हो जाता है चीज़ों को। All right, let's move ahead. We have the next important article which is Project 76. Again prelims perspective से ये आर्टिकल बहुत important है। DRDO takes up study on development of indigenous conventional submarine. अब क्या ये आर्टिकल क्यों न्यूज में आया है, क्या है ये आर्टिकल, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। Project 76, it has been in news since last 2-3 days, it has been continuously in news. बेसिकली इसमें न्यू जनरेशन सबमरीन्स बनाई जाएगी, इंडिजीनियस इंडिया मेड कन्वेंशनल सबमरीन बनाई जाएगी, एंड डीआरडीओ ने इसका बेड़ा अपने सर पे लिया है। अगर हम सबमरीन्स की बात करें, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सबमरीन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबमरीन क्या है, नेवल वेसल्स होती हैं, दीज आर, आई जस्ट राइट इट डाउन, दीज आर नेवल वेसल्स, और यू कैन से दीज आर नेवल शिप्स विच कैन प्रोपेल देमसेल्फ, पानी के अंदर से खुद को प्रोपेल कर सकती हैं। बेसिकली दी सबमरीन मिसाइल्स यूज की जाती हैं, इसमें वेपन सिस्टम्स यूज किए जाते हैं जिनको टॉर्पीडो बोलते हैं। सबमरीन वेपन सिस्टम्स आर नोन एज टॉर्पीडो। और आपको पता है सबसे पहले सबमरीन्स कब एम्प्लॉय की गई थी नेवल वॉरफेयर में, इट वाज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, 1914 1918 के पीरियड में सबमरीन्स को सबसे पहली बार यूज किया गया था। ओके, सो अगेन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रोजेक्ट 76 इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ इज डेवलपिंग इट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका डिजाइन के ऊपर कौन काम कर रहा है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी इज वर्किंग ऑन इट्स डिजाइन।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब ये आर्टिकल थोड़ा सा सीरियस आर्टिकल है, ठीक है। वाई इट इज सीरियस? बिकॉज एवलांचे अगेन इज हिटिंग गांधी सरोवर नियर केदारनाथ। केदारनाथ में पहले भी आपने 2012-13 के पीरियड में देखा होगा, अ ह्यूज डिजास्टर हैपेंड। सो हियर देयर इज अ चोराबारी ग्लेशियर जो कि गांधी सरोवर वैली में गिरा, जहां से एवलांचे शुरू हुआ। अब यहाँ आप देखोगे चोराबारी बमक ग्लेशियर या चोराबारी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है, एंड यहीं से मंदाकिनी रिवर भी ओरिजिनेट करती है इस ग्लेशियर से। सो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। एवेलांचे का मतलब क्या होता है? जब आप देखोगे माउंटेनियस रीजन में, दिस इज अ माउंटेनियस रीजन, जब सडन फ्लो होता है स्नो का या आइस का या डेब्री का जो उस माउंटेन में है, तो उस केस में उसे हम एवेलांचे बोलते हैं। जो माउंट एवरेस्ट में आपने काफी देखा होगा वीडियोस में भी, है ना, एक तूफान सा आता है, बर्फीला तूफान, वो एवेलांचे हो जाता है। तो अगेन पोजीशन ऑफ चोराबारी ग्लेशियर, वेयर इज इट लोकेटेड, एंड मंदाकिनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के परस्पेक्टिव से। नाउ इज माय फेवरेट आर्टिकल, 16th फाइनेंस कमीशन के ऊपर ये आर्टिकल आया है। वाई इट्स माय फेवरेट? बिकॉज फाइनेंस कमीशन के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलरेडी, तो इस आर्टिकल को पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, 16th फाइनेंस कमीशन, अंडर विच आर्टिकल इट हैज बीन फॉर्म्ड? आर्टिकल 280, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनागरिया। ओके, another important point, why this finance commission is formed? Always remember, finance commission helps to devolve funds, हमें एक स्ट्रक्चर देता है कि ऐसे स्टेट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, इन सब के बीच में फंड्स को सेंटर को डिवॉल्व करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें दिस 16th फाइनेंस कमीशन की, अगर हम बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क? दे विल आस्क यू फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, हाउ इज इट कॉन्स्टिट्यूटेड? दे कैन आस्क यू कि फाइनेंस कमीशन में ना TOR होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस? दैट मीन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ व्हाट फंड्स विल बी शेयर्ड बिटवीन द स्टेट्स एंड द अर्बन लोकल बॉडीज एंड अदर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। डेवोल्यूशन बेसिकली कैसे होगा, ये डिस्कस होता है आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो फाइनेंस कमीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इकोनॉमी का एंड इवन इंडियन पॉलिटी का। नाउ फाइनेंस कमीशन क्या है? अंडर आर्टिकल 280 इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड टेक प्लेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। देन ना अलग अलग, आई विल जस्ट क्रिएट अ डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू। अब जब हम फाइनेंस कमीशन को पढ़ ही रहे हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन में रिकमेंडेशन की जाती है हाउ द फंड्स हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रिकमेंडेशन में आप देखोगे वी हैव टू काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वी हैव फर्स्ट द वर्टिकल डेवोल्यूशन, है ना। फिर हमारे पास क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होता है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है ग्रांट्स इन एड। ऑलराइट, यहां तक पॉइंट सबको समझ आ रहा है? अब जब हम बात करेंगे, आई यूज अनदर इंक, वर्टिकल डेवोल्यूशन की, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर देयर विल बी शेयर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स को कैसे डिवॉल्व करना है फंड्स, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? अमंग द स्टेट्स हाउ द फंड्स हैव टू बी शेयर्ड, इस तरीके से, ठीक है। अब जब हमने स्टेट्स को पैसा दे दिया, अब ये आपस में कैसे शेयर करेंगे, वो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रांट्स इन एड क्या होगा? एडिशनल ट्रांसफर्स, एडिशनल एक्स्ट्रा जो पैसा कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए आ गया है, स्पेसिफिक स्टेट सेक्टर को किसी हेल्प की जरूरत है, रिफॉर्म्स में कुछ पैसों की जरूरत है, एडिशनल ट्रांसफर वुड बी ग्रांट्स इन एड, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। और फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती है ना, वो एडवाइजरी होती है नेचर में, इट इज एडवाइजरी इन नेचर, दे आर नॉट बाइंडिंग। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। यूनियन गवर्नमेंट पे इनकी रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग, दे आर यूजुअली एक्सेप्टेड विद मॉडिफिकेशंस और डेविएशंस। ऑलराइट, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं अबाउट फाइनेंस कमीशन। एंड दिस वाज योर क्लास फॉर टुडे। आई होप आपके लिए करंट अफेयर्स इजी हो रहा है। आई हैव ऑल्सो गिवन अ क्लास टेस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल,
यू कैन गिव दैट क्लास टेस्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल. अब कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये सब आर्टिकल्स मैंने पिछले 4 दिन में डेली मेंस क्वेश्चन के इनिशिएटिव में ही आपको रोज पढ़ाए हैं. तो मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. 5 days हमने वो क्लासेस कंडक्ट की हैं. यू कैन फाइंड ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मेंस देयर विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स ऑब्वियसली. थैंक यू सो मच एवरीवन. आज संडे है, रिवीजन आपका चलता रहना चाहिए. डू नॉट स्किप योर रिवीजन एट एनी कॉस्ट.